Hello children, welcome to my Hindi classes. In this session we will be doing chapter 1 of class 10 from the book Sparsh Sakhi. If you like my channel, do like, share and subscribe. Also press the bell button for future notification of my videos. So let's start with the poem. Sakhi. Sakhi is dohe. The poet is Kabir Das. We all know about Kabir Das, right? He was born in 1398 and he lived up to the age of around 120 years. His poetry reveals deep social consciousness and his poetry touches our heart effortlessly. He mainly focused or he always believed in the practical knowledge or the knowledge which we get from our experience in life rather than the knowledge which we get from our books. So let's start with the poem. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए. So what is Bani? Bani means sweet words. Man, mind. Apa, ego. Tan, body. Seetal, cool. Auran, others. So what Kabir is saying here? Kabir says the words which comes out of our mouth, they're very precious or very valuable. So he says we should use sweet words or should talk in a polite manner. Why? Because others should feel the warmth or coolness in our words. Okay? So, apna tan seetal kare auran ko sukh hoye. That means these sweet words, the words which we say, so that not only bring sweetness or that not only bring happiness in us, but that will bring happiness to others also who listen to us, because sweet words are like medicine and harsh words are like injuries or it injures our mind and body. So we should always talk to others in a sweet way and in a polite manner, because it brings happiness not only to us but to others also who listens to us. इधर कबीर का कहना है हमें ऐसे बोल बोलने चाहिए. बानी मतलब बोल. ऐसे बोल हमें बोलने चाहिए जो हमारे मन का जितना भी अहंकार है उन सबको हटा के हमें ऐसे अच्छे बात करने, अच्छे तरीके से दूसरों से बात करना चाहिए कि वो दूसरों को क्या है, शीतल ठंडक पहुंचाए. वो हमारी बातें दूसरों को हमेशा ठंडक पहुंचानी चाहिए. अगर हम दूसरों से अच्छी तरह से बात करेंगे तो उससे क्या होगा? कबीर क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि अगर हम दूसरों से अच्छी तरह से बात करेंगे वो सिर्फ हमें ही खुशी नहीं देगी, वो अच्छी बात, वो शीतलता मतलब वो ठंडक पहुंचाने वाली बातें वो सिर्फ हमारे मन को ही ठंडक नहीं देंगी, बट जो सुन रहा है, परंतु जो उन बातों को सुन रहा है उनको भी उतना ही ठंडक या उतना ही अच्छा वह भी महसूस करेंगे. तो कबीर का कहना है कि हमें हमेशा अच्छे बोल ही बोलने चाहिए. हमारे मन के अहंकार को हटाकर दूसरों से हमेशा अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए. दूसरों से अच्छी तरीके से हमें मिलना चाहिए ताकि वो हमें ही नहीं बल्कि जो सुन रहे हैं उनको भी उतनी ही खुशी दें या उनके मन को भी उतनी ही ठंडक पहुंचाएं. Now let's see how you are going to write the prasang and vyakhya for this sakhi. प्रसंग. प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है. इसके कवि कबीरदास जी हैं. इसमें संत कबीर मीठे बोली और दूसरों को अपनी मीठी बोली से खुशी देने की बात करते हैं. So when you write the prasang, the first two lines will be same for all the sakhi. In the next line you will give a small description about that sakhi, what message Kabir Das is giving in that sakhi. व्याख्या. संत कबीर कहते हैं कि हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए और मन से अहंकार को निकाल देना चाहिए. ऐसी मीठी बोलने
बोली बोलने से न केवल हमारे मन को ठंडक मिलेगी बल्कि उससे सुनने वालों को भी शांति प्राप्त होगी। इन व्याख्या वी हैव टू एलॉबरेट अ लिटिल व्हाट मैसेज कबीरदास जी इज गिविंग इन दैट साखी। नेक्स्ट इज कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम में राम है, दुनिया देखे नाही। So, let's see the meanings. Kasturi, musk. Kundal, kundal means नाभि और navel. Basai, basai means रहना और live. मृग, हिरण, deer. बन, जंगल, जंगल. माही, के अंदर, inside, right? के अंदर. घटी घटी, हृदय में, inside our heart. Here what Kabir is saying, Kasturi Kundali Base, Mrig Dhunde, Ban Mahi. Now what the deer is doing here? The deer is searching for the fragrance. Some fragrance is coming. He is searching for that fragrance in that entire jungle. Ban means jungle. Dhunde, he's searching. He's wandering here and there from where this fragrance is coming out. He is not aware. But exactly that fragrance is coming out from his navel. But he is not aware of that and he is searching for that fragrance in the entire jungle. So what Kabir is comparing here? The deer Kabir is comparing human being with the deer. Why? And that fragrance is God. So that is a comparison being done by Kabir here. He is saying we human beings are also like that deer only. Okay. Where is God? God is inside our heart, right? The God is inside our heart. Without knowing that fact, we are searching for the God in temple, mosque, church, everywhere in Himalayas. We are searching for them all over the world without knowing the fact that God is inside our heart only. So कबीर जी का कहना है जिस तरह से मृग, जिस तरह से हिरन वो खुशबू ढूंढते हुए पूरे जंगल में भटकता रहता है, घूमता रहता है, वो खुशबू कहाँ से आ रही है वो जानने के लिए, बल्कि उसको पता ही नहीं है कि वो असली जो खुशबू है उसकी नाभि से ही आ रहा है, उसी में से वो अच्छी खुशबू आ रही है। उसे जाने बिना वो उस खुशबू को पूरी जंगल में ढूंढ रहा है। तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि वो जो हिरन है वो हिरन हम मनुष्य जैसे हैं कि हम भी उस हिरन जैसे ही हैं, मनुष्य भी हिरन जैसे ही हैं। और वो खुशबू क्या है? खुशबू भगवान है। तो मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मनुष्य हमारे हृदय में रहते हैं। इस चीज़ को जाने बिना हम भगवान को पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हिमालय, हर जगह पे जाके उनको तलाशते हैं, जबकि जो भगवान हैं वो हमारे ही दिल में रहते हैं। इस सच्चाई से अनजान हम लोग पूरी दुनिया में भगवान को ढूंढते रहते हैं। प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें मनुष्य की तुलना कस्तूरी हिरन से किया है। जिस तरह हिरन कस्तूरी की तलाश में भटकता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार हिरन पूरे जंगल में कस्तूरी की सुगंध को ढूंढते हुए भटकता है, जो उसके नाभि से आती है और वह इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को देवालयों में और तीर्थों में ढूंढते रहते हैं। वह इस बात से बेखबर हैं कि ईश्वर तो हमारे मन में रहते हैं, देवालयों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। So now here what Kabir Das wants to say. Let's see. मैं, here मैं is ego.
ईगो मीन्स अहंकार, हरि मीन्स गॉड, भगवान, अंधियारा डार्कनेस अंधेरा, दीपक lamp diya. Now here what is saying? मैं here is ego. So Kabir Das wants to say that till the time I had ego in my mind, so till that time there was no God. Okay, so what he wants to say, both ego and God cannot survive in a single person. If God is there, there will be no ego, and if ego is there, God's presence will not be there. So this road is very narrow. Only one thing can survive there. So here Kabir Das is saying, till the time I had ego in my mind, at that time, till that time there was no God. I cannot feel, or we cannot feel the presence of God in our heart. But now when I found that God inside me, okay, now since the God is there inside me, now there is no ego, because ego now has to go out. So I could realize the power of God, and now I can feel also, because that ego, that ahankar is totally moved out of from my mind or from my body. There is only the presence of God, and that is love. Okay, and अब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही. Now what happens when we light the lamp? When we lit the lamp, what happens? The darkness will move away, right? And it will be totally light. It will be full of light. That darkness will not be there. So here Kabir Das is comparing darkness to ego and light lamp to God. Ego, the same way, the first line he said, me is ego, Hari is God. Here darkness is that ego which is inside us, and the light is God. So what happens when we light the lamp, when we lit the lamp, that darkness is moved. So in the same way, when the God comes in our mind, the darkness is gone. That is, that ego will be gone, and there will be only you will find only lights. That is, light is always positive. So you will always find that love and positive things in your mind. यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मैं मतलब अहंकार, हमारे हृदय में, हम में अहंकार या भगवान, कोई एक समय रह सकता है. अगर अहंकार है तो भगवान नहीं, भगवान है तो अहंकार नहीं. तो जब तक मेरे मन में अहंकार था, तब तक भगवान के दर्शन मैं नहीं कर पाया. मेरे अंदर भगवान की जो हमारा प्यार है, या जो जितना भी अच्छा एक विकार होता है, वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ अहंकार था. पर आज मेरे मन में भगवान है तो कोई अहंकार नहीं. मुझे सिर्फ अच्छा ही महसूस होता है, प्यार है हर जगह पे. तो अभी मेरे मन में अहंकार नहीं तो भगवान है. तो हमारे मन में भगवान या अहंकार कोई एक समय रह सकते हैं. तो किस तरह से यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं, यहाँ पे उजाला, जो अंधेरा हटाता है, डार्कनेस, जो अंधेरा है उसको कबीर दास जी कहते हैं कि वो अहंकार है, और जो उजाला है, जो हमें दिए से जो उजाला आता है, वो भगवान है. किस तरह से अगर हम एक दिया जलाते हैं, पूरे घर में रोशनी फैल जाती है, वो अंधेरा मिट जाता है. इसी तरह जैसे ही हमारे मन में भगवान आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, या भगवान को हम जगह देते हैं, तब क्या होता है, वो अंधेरा रूपक अहंकार हमारे दिमाग से, हम में से वो अहंकार मिट जाता है, और हमें सिर्फ भगवान के भांति सबसे प्यार और मोहब्बत से ही हम रहना शुरू करते हैं. प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है. इसके कवि कबीरदास जी हैं. इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मन में तभी वास कर सकते हैं जब मनुष्य के मन से अहंकार की भावना मिट जाती है. व्याख्या. कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का वास नहीं था. आज मेरे मन में अहंकार नहीं, इसलिए प्रभु का वास है.
कवि ने दीपक की तुलना ईश्वर को और अंधकार की तुलना अहंकार से की है। ईश्वर रूपी दीपक के जलते ही अर्थात दर्शन होते ही अंधकार रूपी अहंकार मिट जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। Now here Sukhiya means happy, Sansar means world, Khave eat, Sove sleep, Dukhiya sad, Das servant, Rove cry, Jage awake. Sukhiya means खुश, जो लोग खुश हैं, संसार दुनिया, खावे खाना, सोवे सोना, दुखिया उदास, दास रोवे रोना, जागे जगना. Here what is what Kabir Das wants to say in this Sakhi? He is basically saying the entire world is living in a delusion. They are not aware of what is happening. What they are doing, they are sleeping, they are eating, and they are finding the happiness in that. They feel the happiness is mainly in that only, and they are not concerned about others' feelings and all. So they are not living in this, they are not aware of anything. So they are they are living in a darkness. Basically they are not aware and they are living in a darkness. So by seeing that, what Kabir Das is saying, he is very sad because he is sad with the attitude or the darkness or andhakar, because these people are living in such a delusion or darkness. By seeing that, Kabir is very sad and he is crying, and also he is crying because he wants to because he is always concerned about them, and he wants to get involved into God or worship the God or get the love of God. So for getting that, okay, just every time he is thinking about the God, for that only he is crying. So यहाँ पे कबीर दास कहना चाहते हैं कि लोगों का वो लोग कहाँ खुशी मिलता है उनको, खाने में और सोने में अपनी खुशी वो ढूंढ रहे हैं. वो अनजान हैं, वो अंधेरे में हैं और वो समझते हैं कि उनकी खुशी इसी खाने पीने में है. वो दूसरों के बारे में चिंतित नहीं है और सोचना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं. तो कबीर दास जी कहते हैं कि वो इनकी अनजान, जिस तरह से इनका व्यवहार है उससे वो बहुत उदास हैं, क्योंकि वो अपनी इस दुनिया में नहीं हैं, वो एक अंधकार में जी रहे हैं. तो ये देख के कबीर दास बहुत उदास हैं और भगवान के लिए, और वो चाहते हैं कि वह प्रभु भगवान की क्या है, भगवान की भक्ति में लीन है, वो उनमें ही लीन होना चाहते हैं, और उसी से वो हमेशा चिंतित हैं और उसी सोच के वे रोते हैं और उदास हैं, क्योंकि जिस अंधकार में ये लोग रहते हैं, जिसमें ये खुशी ढूंढ रहे हैं, वह देख के वो बहुत उदास भी हैं. प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है. इसके कवि कबीरदास जी हैं. इसमें कबीरदास जी अज्ञान रूपी अंधकार में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं. उनके व्यवहार को देखकर कबीरदास जी बहुत दुखी और उदास हैं. व्याख्या. कबीरदास जी कहते हैं, संसार के लोग खाने और सोने में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं. वह जीवन और मृत्यु के सच्चाई से अज्ञात हैं. वह अंधकार में डूबे हुए हैं. लोगों को देखकर कबीरदास उदास और रो रहे हैं. वे ईश्वर की प्राप्ति की चिंता में जगते रहते हैं. बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई. So let's see the meanings. बिरह separation, जुदाई, भुवंगम snake, सांप, तन body, शरीर, बसे leaves, रहना, मंत्र chants, वियोगी separated, जुदा होके रहना, जो जुदा हो जाए, अलग हो जाते हैं, जीवे जिए, लिव,
Baura, mad, pagal. Here, what Kabir Das want to say in this Sakhi? Here he is saying, like the biraha bhuvangam tanbase, that pain of separation, when it affects entire body, our entire body, when the pain affects, it is like a snake. Bhuvangam means snake, so it is like a snake. Okay, that pain, your chants, whatever you do so many chants, anything, prayers, that pain, like you are not able to move out of that pain, or you will be like you have to feel that pain always and every time. So when we are separated from our nears and dears, it is like we are always feeling that pain, and like this chance, nothing, like they are not able to like relieve us from that pain. Now, what in the next line he's saying, Ram viyogi na jive to bera bora hoy. Ram here is God. So he is saying, like the same way, the true devotion, the relation between God and devotee is also like the same. So the true devotee, like they cannot live with the God. Here it's comparing, the first line, he's comparing with the God and the devotee. It is the same pain when we are separated from the near ones, the same pain we will feel when we are separated from our God, and we try to find and search them, right? And we will behave like a mad people. Jeev, what is this? Jive to bera hoi. So the separation like make us mad. Okay, and we behave like a mad people, and we try to search God everywhere, and we are like in that separation, we are very sad, and that pain is very painful. यहाँ पे कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि ये जो अगर जब हम बिरह, जब किसी से जुदा होते हैं अपनों से, वो जो हमारे वो जो दर्द है वो हमारे पूरे तन मन में सांप के जैसे ही लपेट जाता है, तो उतना ज़्यादा वो हमें दर्द होता है, और जितना भी मंत्र कुछ भी करें वो दर्द हमारा कम नहीं होता, क्योंकि वो जो जुदाई का दर्द है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। हम मंत्र करते हैं, हम कुछ भी करें, बट हम उस दर्द से मुक्त नहीं हो पाते हैं। उसी तरह कबीरदास कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच का जो बंधन है वो भी उसी तरह से होता है। भक्त भी, जो सच्चा भक्त होता है, वो भगवान की तलाश में या वो भगवान के बिना नहीं रह पाते हैं, वो भगवान को ही तलाशते रहते हैं, और उनके वियोग में वो पागल जैसे हो जाते हैं। राइट, उनका क्या होता है, सेपरेशन, उनको उन भगवान से जो अलग हो जाते हैं वो उन्हें पागल बना देता है, और वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह अपनों से बिछड़ने का गम हमें हमेशा तकलीफ देती है, उसी प्रकार सच्चे भक्त ईश्वर से बिछड़कर नहीं रह सकते। उनके वियोग में वह पागल हो जाता है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो वह हमें बहुत तकलीफ पहुंचाता है, और वह दर्द सांप बनकर लौटने लगता है, और उस पर कोई भी मंत्र या दवा काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार सच्चे भक्त भी ईश्वर के बिना नहीं रह पाता है। उनके वियोग में भक्त जीवित नहीं रह पाता, और अगर जीवित रहता है तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेडा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। So here let's see the meanings. निंदक means critics, जो हमारी बुराइयां करते हैं जो लोग। नेडा नियर, पास में। आंगनी कोर्टयार्ड, आंगन। कुटी हट, कुटिया झोपड़ी। साबुन सोप, साबुन ही बोलते हैं। पानी पानी, वाटर। निर्मल प्योर, शुद्ध। सुभाई बिहेवियर, आदतें। So what Kabir Das ji want to like discuss in the Sakhi? He is saying the critics, okay, those who
say about us. We should always keep them near to us. Neda means we should always keep them near to us. Why? Because like near to us means we should keep them, or we should make them stay in our courtyard only. Why he's saying that? See, because we human being, like we are full of ego, so we will not be able to find our faults. These critics people, what they do, they will always try to find out any negative qualities in us. They're always busy in talking something bad about us, right? So what happens when they continuously talk about our negatives? We will be able to understand what negative qualities we are having. Okay, and accordingly we can improve that part. So if we keep them along with us, we will be like in a position where we don't have any negative qualities, because they will always keep on saying that. So Kabir Das ji wants to say that we should always keep critics near to our very near to us, like we should give them space in our courtyard only. Like if a tree is there near to our house, we should always keep a tree. Why? Because we'll always get the shade of that tree, right? So same way we should give them some space in our courtyard, because they will help us to improve. Okay, and bin sabun pani bina nirmal kare subhai. So what they are doing there, without soap and water, they are able to make us clean. They will be making us more pure. They are doing the work of soap and water. The same what the soap and water do, it removes the dirt from our body. So the same way they are doing the work of the soap and water, they will remove the dirt from our mind, and they will make us more pure. So we should always keep them near to us. यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं या जो निंदा करते हैं, उन्हें हमेशा हमारे पास ही रखना चाहिए. ओके, उन्हें हमारे आंगन में ही उनको जगह देनी चाहिए. वो इस तरह से क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य का जो अहंकार है वो उनको कभी अपनी बुराई की और उनकी जो बुराई है वो कभी वो पहचान नहीं पाते हैं. तो ये जो निंदक जो हैं, जो हमारी हमेशा निंदा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा हमारी बुराई की ओर ही ध्यान देते हैं. तो इस तरह से हम अपनी बुराई के बारे में जान भी सकते हैं, और जो बुराई है पूरी तरह हमारे खुद से हम मिटा भी सकते हैं. तो ये निंदक किस तरह से हैं? वो पानी और साबुन का काम करते हैं. बिना पानी और साबुन के हमें वो स्वच्छ कर देते हैं. जैसे पानी और साबुन हमारे शरीर की गंदगी को निकालने में मदद करती है और हमें पूरा स्वच्छ बना देती हैं, इसी तरह निंदक क्या करते हैं? हमारी बुराइयों को हमेशा बताते हैं. इस तरह से हमारी बुराई भी बिना पानी और साबुन के निकल जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं. प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है. इसके कवि कबीरदास जी हैं. इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमारे स्वभाव को शुद्ध बनाते हैं. व्याख्या. कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें हमेशा हमारे समीप रखना चाहिए. उन्हें अपने आंगन में ही रहने का प्रबंध करना चाहिए. संत कबीर का मानना है कि जिस तरह साबुन और पानी हमारे शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार निंदक भी हमें हमारी गलतियों को दिखाता है और हमें सुधरने का मौका देता है, और बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव शुद्ध करता है. नेक्स्ट साखी इज पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़ेसु पंडित होई. Here let's see the meanings. What the meanings of the words? It's pothi means book. It's like religious books or pustak. Padi read padna. Jug sansar world. Mua died. Marna pandit scholars. Ashir akshar letter. Peev prayer or near. In this Sakhi, what mainly the Kabirdas is trying to explain. Again, here also he is mainly focusing on our God's love and worship. Here he wants to say, just by reading so many books, so many religious books, there are so many people who read so many religious books and they die. But it doesn't make them a scholar. Okay.
only by reading many books and just knowing what is written in that, it does not make one person a scholar. So they are reading books, they died, but they don't become a scholar. But what Kabirdas wants to say here, what he is saying is like, if a person, if someone can understand a single word of God's love, Ishwar Pray means it's like God's life. If somebody can understand a single word, he can become the real scholar. Okay, so here he's saying the God's love. If somebody can understand the God's love, then only they can become a scholar. Not only if you read many books, it does not make you scholar. कबीरदास जी साखी में कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती हैं, वो सब पढ़ लेते हैं और मर जाते हैं, पर ये उन्हें एक पंडित नहीं बना पाता है। बहुत पुस्तकें पढ़ने से या उसके बारे में जानने से कोई पंडित नहीं बन जाता है। कबीरदास जी का कहना है कि अगर कोई इंसान ईश्वर का एक, उनकी जो प्रेम है, उनका जो प्यार है, उसका अगर एक भी अक्षर सही मायने से समझ जाता है, उनको पहचान, उसको समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको ले लेता है, वही सही मायने में एक पंडित बन पाता है। किताबी पुस्तक, बहुत से किताब पढ़ने से या उसके बारे में जानने से कोई पंडित नहीं बनता है। अगर हमें सही पंडित बनना है तो हमें भगवान के प्यार को या उसके एक अक्षर को भी समझना बहुत हो जाता है। प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, सच्चा ज्ञान पुस्तकों या ग्रंथों से नहीं बल्कि ईश्वर प्रेम से प्राप्त होता है। व्याख्या। संत कबीर कहते हैं, बहुत सारे लोग मोटी मोटी पुस्तक पढ़कर मर गए, परंतु वो सभी मनुष्य पंडित नहीं बन सके। उनका मानना है कि बहुत सारे किताबों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन सकता, परंतु अगर कोई ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर समझ ले या पढ़ ले तो वह पंडित बन जाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। हम घर जालिया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। So let's see the meanings first. Jalya means burn, jalana. Apna, our, apna. Murada, burning wood. Or here murada is basically is saying about knowledge. जलती हुई लकड़ी या ज्ञान. हाथी, hand, हाथ. तास, your, इसका. साथी, with me, मेरे साथ. In this Sakhi, what Kabirdas ji wants to say is like, here ghar means, hum ghar. Ghar means your ego, your fascinations, darkness in your mind. This is mainly ghar means. So he's saying he has burned his house with his own hand. With a, what jalti hui lakdi means, with the burning wood which he was having. He burned his own house. Doesn't mean his own house. He wants to say his ego, his fascinations, everything he burned himself, that he removed from his mind. How? With his knowledge. Okay, knowledge rupee wood. That is what he's doing with his knowledge. There is no, now he has sacrificed everything, because we can get God, or we can involve into the devotion of God only when we remove the fascinations, your ego, everything from our mind. So Kabirdas ji is saying like he has burned his own house, that is he has burned his ego, fascination, everything with his knowledge. Okay. अब घर जली तास का, जालो तास का, जे चले हमारे साथी. Now he is saying whoever who wants to come with him, he is ready to burn their house also. So अब he is going to burn those people house who wants to come with him. That is, here he wants to say he is ready to burn or to remove or help them to kill the ego, fascinations, darkness which they are having in their mind. He is ready to help them to remove, and those who wants to come with him. Okay, those who also wants to follow the path of God, he
is ready to remove their ego, darkness, everything from their mind. यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अपने घर को अपने हाथ में जो लकड़ी है, जलती हुई लकड़ी से जला दिया है. इधर घर का कहना है अहंकार, अंधेरा जो हमारे मन में है, मोह माया, इन सबको उन्होंने अपने मन से निकाल दिया है और इसको उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी से, मतलब उनके ज्ञान की मशाल से उन्होंने उसको जला दिया है. और अभी वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भगवान के दर्शन या उन्हीं में लीन होना चाहते हैं. इस वजह से अपने मन का अहंकार, जो मोह माया है, सबको उन्होंने त्याग दिया अपनी ज्ञान रूपी मशाल से. तो अब वो क्या कह रहे हैं? वो दूसरों का भी घर इसी तरह से जलाने को तैयार हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं. मतलब कि वो दूसरों का भी मोह माया जो है या उनकी अंधकार, उनका अहंकार, वो मिटाने में वो मदद कर सकते हैं, जो उन्हीं के जैसे भगवान के मार्ग में, जो भक्ति के मार्ग में जाना चाहते हैं, वो उनकी भी मदद करने को तैयार हैं. प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से लिया गया है. इसके कवि कबीरदास जी हैं. इसमें संत कबीर मोह माया अहंकार को जलाकर या त्याग कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं. व्याख्या. संत कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपना घर अर्थात मोह माया अहंकार सबको ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है, अर्थात उन्हें मोह माया को त्याग कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है. अब वह उनका घर जलाने की बात कर रहे हैं जो उनके साथ चलेंगे. उनका कहना है कि उन सबको अपना मोह माया त्यागना होगा जो सच्चे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है. So with this we have finished the dohe. Hope it is clear to you. In case if you have any doubt, you can send your query to my comment box. I will review and reply to the same. So we will meet in the next session with a new chapter. Till then, take care and bye.